opportunity to welcome you all to the seminar on preservation of tribal heritage. Moving further, it is a great honor for me to introduce and welcome our respected resource person, Dr. Hari Urao sir, our Honorable Chairman sir, Mr. Manmohan Mehta sir, our Director, Mr. Manoj Kumar Mehta sir, respected Principal Ma'am, Dr. Santosh Arora Ma'am, our Manager, Mr. Mukesh Kumar Mehta sir, Administrator Ma'am, Ms. Meena Ma'am, our dignified teachers, non-teaching staffs, and my dear friends, I welcome you all. To make this afternoon a blessed one, I would request our resource person, all the dignitaries and teachers to come forward for lamp lighting. Thank you, sir. Thank you, ma'am. जल, जंगल, जमीन ही बस जिसकी संपदा, प्रकृति उपासक एवं संस्कृति संरक्षक आदिवासी है सदा। Now, I request our Honorable Chairman Sir, Director Sir, respected Principal Ma'am, to please come on the stage and offer bouquet, shawl and memento to our Honorable Resource Person on behalf of our management. I request our Resource Person, Dr. Hari Rao Sir, to please come on the stage. Now I request respected Director Sir, Principal Ma'am, Administrator Ma'am to honor our Chairman Sir with shawl and bouquet. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, moving further, I will request our respected Principal Ma'am to come forward and say Good morning to all. A very warm welcome to our Honorable Chief Guest, Dr. Hari Rao, SOD and Coordinator of Tribal Language, Ranchi University. Our Chairman, Mr. Manmohan Mehta Sir, our Director, Mr. Manoj Kumar Mehta Sir, our Manager, Mr. Mukesh Kumar Mehta, and our admin, Ms. Meena Mehta, my co-lecturers and my Yadi students.
historic, artistic, aesthetic, archaeological, and anthropological, scientific, and cultural significance. Preservation of cultural heritage provides clues to our past and how our society has been evolved. It helps us examine our history and traditions and enables us to develop an awareness within ourselves. To preserve ourselves helps us to understand and explain. Of course, preservation of tribal heritage is a preservation of our society as well. We are the way we are now, focusing on the same agenda. Here we are to move ahead. Thank you, and on behalf of Marathon Bangalore, we wish you have a nice day. Thank you, ma'am, for your valuable thoughts. Today, we are privileged to have an opportunity to listen to our resource person about the preservation of tribal heritage and address its necessity. Sir, I would request you to please come on the stage and address our audience. Honorable Chairman Sahab, Honorable Mathur ji, Director Manoj ji, Pracharya Santosh ji, मुकेश जी, इस बीएड कॉलेज के सभी पदाधिकारीगण, सभी शिक्षकगण, सभी छात्र और छात्रा, यह बात हो रही है ट्राइबल हेरिटेज की, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर ट्राइबल हेरिटेज। आप लोग पूरे देश में देखते हैं या दुनिया में देखते हैं कि जो वास्तुकला का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो लाल किला हो, आगरा का ताजमहल हो, चार मीनार हो या कुतुब मीनार हो, उस तरह का हेरिटेज का कल्चर झारखंड में नहीं है। जो वास्तुकला के श्रेणी में आता है, उसमें अगर झारखंड में देखें तो उस तरह का हेरिटेज, वास्तुकला का हेरिटेज पलामू किला है और शीशे में डोईसा नगर, डोईसा नगर का नवरत्न नगर, जो कहता है लोग कि 9 मंजिला था और अब 1 ही मंजिला बचा है। उसे देखने के लिए लोग जाते हैं और पलामू किला को भी लोग देखने जाते हैं, लेकिन पलामू किला वो बहुत ही जीर्ण अवस्था में है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर यहाँ की हेरिटेज की बात करें तो आप लोगों ने अभी स्वागत में जो प्रस्तुति दी आप लोगों ने, वह भी एक हेरिटेज है और इसी तरह का मिलता जुलता, इससे मिलता जुलता हेरिटेज झारखंड में बहुत बड़े तादाद में पाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि झारखंड में ये जब भी गीत गा रहे थे, आप लोग स्वागत कर रहे थे, कुछ स्टेप लेकर नृत्य कर रहे थे, जो मुझे लगा कि यह कॉलेज भी उस तरह के हेरिटेज को संजो कर रख रहा है। यह तो चेयरमैन साहब को इस श्रेय जाता है, यहाँ के सारे शिक्षक, डायरेक्टर हो चाहे प्राचार्य हो, सारे लोगों को इसका श्रेय जाता है। लेकिन आप लोगों को बहुत अफसोस के साथ बताना पड़ता है कि झारखंड में अखड़ा संस्कृति था और अखड़ा में सारे लोग नृत्य किया करते थे, गीत गाया करते थे। आज उसकी हालत बहुत खराब स्थिति में आ गई है। अखड़ा कला को भी बचाने की जरूरत है। झारखंड में ऐसे आपको वास्तुकला की कमी है, लेकिन यहाँ मिट्टी कला, गृह कला, बांस कला, काष्ठ कला, ये सारी चीज पाई जाती है और ये सब धीरे धीरे उभर कर सामने आ रहा है।
इसको उभार कर सामने लाने में झारखंड का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है। और इसी तरह से समाज के क्षेत्र में भी जो आदिवासियों का जो कल्चर है, और हेरिटेज का मतलब है धरोहर, विरासत। हमारी विरासत क्या है, हमारा धरोहर क्या है, और इन सबको बचा कर रखने की क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। आज यूएनओ की बात हो या यूनेस्को की बात हो, पूरे विश्व की इस प्रकार की जो धरोहर है, विरासत है, जिसे हेरिटेज के रूप में सजो कर रखने की बात की जाती है। और इसीलिए यूएनओ या यूनेस्को भाषा को बचाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि भाषा ही सभी संस्कृति की बात होती है। जो हमारे रीति रिवाज है, रिचुअल्स है, वो सारे के सारे भाषा में। आप लोग जो अभी गीत गा रहे हैं, यहाँ की भाषा में गा रहे हैं, आप उसे इंग्लिश में या चाइनीज में या और किसी अन्य भाषा में आप उसे प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। उसी तर्ज पर प्रस्तुत करने में दिक्कत होती है। और इसीलिए भाषा को बचा कर रखने के लिए पूरे विश्व में मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और आदिवासियों का जो अभी आप लोग हेरिटेज के रूप में आप लोग बचा कर रखने का बात कर रहे हैं, उस पर विचार मंथन कर रहे हैं, उसके लिए सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, तो इन सबको भी बचाने के लिए यूएनओ घोषित की है 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। ये जो अब हम प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए ये सब विश्व के स्तर पर इसको बचाने के लिए, इसको प्रिजर्व करने के लिए प्रयास कर रहा है। जो आप धरोहर कहते हैं, जिसे विरासत कहते हैं, और यहाँ देश में या दुनिया में मेन स्ट्रीम की बात की जाती है, मुख्य धारा की बात की जाती है। जो पूरे विश्व के आदिवासी हो या झारखंड के आदिवासी हो, ये मुख्य धारा से अलग अलग पड़े हुए हैं, और इन लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की बात होती है। लेकिन ये आदिवासी या जिसे पिछड़े हुए माना जाता है, ये लोग सोचते हैं कि क्या हम लोग उससे मुख्य धारा कहें या उसमें हम जुड़े, जिसमें दहेज के नाम पर बहुओं को जला दी जाती है, बहुओं को, बेटियों को मार दी जाती है, क्या वही मुख्य धारा है। ये लोग, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, और इसीलिए वो लोग मुख्य धारा में जुड़ने से बचते हैं। क्योंकि यहाँ के आदिवासी समुदाय में, तो झारखंड की बात हो, झारखंड के आदिवासी हो, या पूरे देश या दुनिया के आदिवासियों की बात हो, इन लोगों के बीच में दहेज की प्रथा नहीं है। या झारखंड में कम से दहेज के नाम पर डाली टका उड़ाओ लोगों में, मुंडा संथाल हो में, बोनों में, और ये सब कितना होता है, पहले 100 रुपया था। मगर ये लड़की की माँ को लड़की के लिए दिया जाता था 1 रुपया, भी 7 रुपया की बात होती है। यहाँ लड़का के लिए देने की बात नहीं है, प्रथा नहीं है। लड़की के लिए इसलिए दिया जाता है कि लड़की के माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसे योग्य बनाया, और वह अपने ससुराल जाएंगे, तो उसको पालने पोसने के एवज में सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक उसको 100 रुपया या 7.25 रुपया दिया जाता है, जैसे दोनों या डाली टका, ये सब कहा जाता है। ये प्रथा है। यहाँ तो लोग कहता है कि सास डांटे न ननद पीटे, बहू का ही क्यों स्टोव फटे, ये कहता है। तो उस व्यवस्था से, उस प्रथा से लोग बचना चाहते हैं। तो हम लोग अगर इसको अच्छा मानते हैं, तो उसको हम लोग
हेरिटेज के रूप में बचाना चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसको संरक्षित करना चाहिए। इस तरह की जो धरोहर है, व्यवस्था है। आदिवासी समाज में सामूहिकता की भावना, कोई भी व्यक्ति अकेले किसी प्रकार का निर्णय नहीं देता है। कोई भी निर्णय देना हो तो पूरे गांव के लोग, पंचायत के लोग मिलकर निर्णय करते हैं। अगर यहाँ पूजा पद्धति की बात करें, यहाँ के फिलोसफी या दर्शन की बात करें, तो पूजा भी पूरे गांव के लिए या पूरे क्षेत्र के लिए पहाड़ के द्वारा पूजा की जाती है। पूरे गांव के लिए पहाड़ मन्नत मानता है, सुख समृद्धि की बात ईश्वर से पालन करता है। ये व्यवस्था सभी जगह नहीं मिलती। इस क्षेत्र में पाढ़ा व्यवस्था भी पाई जाती है, जो कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसी से कम्युनिस्ट पार्टी बनी। लेकिन झारखंड का कम्युनिज्म क्या है? पढ़ा व्यवस्था में पढ़ा राजा होता है, पढ़ा दीवान होता है, कोटवार होता है, परिभरवा होता है। इन लोग का रोल क्या है और इन लोगों की नियुक्ति कैसे होती है, जिसे हमको समझने का जरूरत है और जिसे बचाने का जरूरत है, और उसका अनुकरण करना, चाहे सर्व समाज की बात हो, मेन स्ट्रीम की बात हो, चाहे आज कोई भी समुदाय हो, उसे समझने का जरूरत है, इसका अनुकरण करने की जरूरत है। अनुकरण इसलिए करना चाहिए जो कम्युनिज्म में, कम्युनिस्ट पार्टी में उसके चेयरमैन होते हैं, उसके जनरल सेक्रेटरी होते हैं या और कई प्रकार के पदाधिकारी। लेकिन पढ़ा व्यवस्था में पढ़ा राजा जरूर होता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति इस व्यवस्था में नहीं होता। पढ़ा व्यवस्था में पूरा का पूरा एक गांव पढ़ा गांव कहलाता है, पढ़ा गांव कहलाता है। और उस गांव का अगर राजा गांव कैसे होता, देखिए पढ़ा व्यवस्था में 5 गांव का 5 पढ़ा, 7 गांव का 7 पढ़ा, 12 गांव का 12 पढ़ा, इस तरह का होता है। एक पढ़ा में अगर किसी प्रकार का निर्णय नहीं हुआ तो सभी पढ़ा के लोग बैठकर उस समस्या का निदान के लिए मीटिंग करते हैं, और तब पढ़ा राजा का वहाँ पर रोल होता है। और पढ़ा राजा कौन होता है? उस गांव का कोई एक ही व्यक्ति हमेशा राजा का रोल में, राजा की भूमिका में नहीं रहेगा। उस गांव के कोई भी होशियार समझदार व्यक्ति, बुजुर्ग व्यक्ति, वो पढ़ा राजा की भूमिका में आएगा और फैसला करेगा जो सर्वमान्य है। तो ये कम्युनिज्म से भी ऊपर की बात यहाँ पर की जाती है, सामूहिकता की बात की जाती है। अगर आप लोग यहाँ पर झारखंड में नृत्य करने की बात करें तो कोई भी एक व्यक्ति नृत्य नहीं करता है, समूह में नृत्य होती है। अभी आप लोग परीक्षण के लिए आप लोग स्वागत गीत और नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, उसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, कोई एक युवती नहीं थी। लेकिन अन्य जगह आप देखते हैं प्रिंसिपल में, आप जानते हैं इधर भांगड़ा उसमें लोग रहते हैं, कई लोग रहते हैं, लेकिन उसमें इस तरह से पंक्तिबद्ध होकर नृत्य नहीं करते। कुचिपुड़ी हो, कथक हो या भारतनाट्यम, उसमें एक व्यक्ति का नृत्य होता है। लेकिन झारखंड में सामूहिकता है। यहाँ झारखंड की कोई भी जाति धर्म, केवल आदिवासी नहीं, यहाँ के जो गैर आदिवासी, यहाँ के जो मूल वासी हैं, जो सदान कहे जाते हैं, सारे के सारे लोग लगभग उसी तरह से अपना लाइफ लीड करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि चाहे मीटिंग की बात हो, पूरा गांव की बात हो, पूरे समाज की बात हो, पूरे क्षेत्र की बात हो, तो सब मिलकर निर्णय करते हैं। यहाँ एक व्यक्ति का इम्पोर्टेंस नहीं है। ये सब हमारा धरोहर हो सकता है। और आप लोग जो इस तरह का विषय रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया को आप लोग एक रास्ता दिखा सकते हैं, यहाँ से माध्यम बन सकते हैं। ये हर व्यक्ति से काम इस प्रकार का नहीं हो सकता। इसलिए मैं तो कहूँगा कि ये जो मनगढ़ बीएड कॉलेज है,
इस सब काम के लिए धन्यवाद का पात्र है। और एक आज झारखंड में कहें या पूरे रांची में कहें, बहुत ही जाना पहचाना नाम है। मनरखन स्कूल की बात हो, मनरखन बीएड की बात हो, ये सारे लोग इसको बहुत ही आदर के साथ नाम लेते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और इस तरह से आप हेरिटेज की बात करके, इस तरह का विषय बना करके आप इन बातों पर चर्चा करा रहे हैं, ये भी राज्य के लिए और देश के लिए भी बहुत अनोखी बात है, जिसे लेकर यूएनओ, यूनेस्को और पूरे विश्व के लोग सोच रहे हैं कि इसको कैसे हम लोग प्रिजर्व करें, कैसे बचाएं। ऐसे में आप एक कदम आगे, उससे भी एक कदम आगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ की भाषा देखें, झारखंड की भाषा, अगर हम ये उड़ान भाषा की बात करें तो इस भाषा में कोई भी युवती, कोई भी लड़की अगर लड़का से बात करती है तो पुल्लिंग हो जाती है, स्त्रीलिंग के रूप में बात नहीं करती। लेकिन एक लड़की लड़की के साथ बात करेगी, दूसरी लड़की से बात करेगी तो स्त्रीलिंग होकर बात करेगी। ये समानता का बात है। यहाँ पर भाषा में भी समानता का बात है। यहाँ महिला और पुरुष में भेद की बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्वि वचन, बहुवचन। ये यहाँ की मुंडारी भाषा, मुंडारी भाषा परिवार में, जैसे आग्नेय भाषा परिवार भी कहा जाता है। मुंडारी भाषा परिवार में मुंडा, संथाल, भोग, खड़िया, ये सब आते हैं। झारखंड में ये जो पूर्व भाषा है नाम, और यहाँ की एक मालतो भाषा है, साहेबगंज की पहाड़ी पर माले, जिसे अभी पहाड़िया जाति कहा जाता है। ये सब द्राविड़ भाषा परिवार के लोग। और रांची यूनिवर्सिटी में जो 4 क्षेत्रीय भाषा, जो 4 रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होती है पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर, ये सब आर्य भाषा परिवार की। तो यहाँ की भाषा को देख रहे हैं, संस्कृत में 3 वचन होते हैं और यहाँ की मुंडारी भाषा में 3 वचन होते हैं। भाषा के मामले में भी आप देखें तो पुरानी भाषा हो चाहे बहुत विकसित भाषा हो, उससे यहाँ की भाषा पीछे नहीं। पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं, पूरे भारत, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि लड़कियां विवाह के बाद अपने पति का घर जाती है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी के घर में जाकर रहे? ऐसा हो तो लोगों को बहुत अटपटा लगता है, सोचते नहीं है। और जो परंपरा से चली आ रही है इसे लोग निभा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को जानकारी होगी कि भारत में मेघालय में एक गारो खासी जाति है, ये ट्राइब है, खासी ट्राइब। ये लोग विवाह के पश्चात लड़के ही लड़की के घर में रहते हैं, लड़का लड़की के घर में नहीं जाता है। ये पूरे के पूरे समुदाय इसी परंपरा में उनकी विवाह होती है, वैसा ही लोग रहते हैं। मेघालय में लोग कहते हैं कि चेरापूंजी, हम लोग वहां गए, एक गांव है, एशिया में सबसे सुंदर, सबसे साफ गांव है। वहां हम लोग गए और उसी का होटल में ठहरे और रात में पूछे हम उसको, जो हम लोगों को होटल में रख रहा था, चाय पानी पिला रहा था, उससे पूछे कि भाई ये होटल किसका है, आपका है? वो बोला नहीं, मेरा नहीं है, मेरी सास का है। वो नहीं बोला कि मेरी ससुर का है। इसलिए कि वो खुद अपने पत्नी के घर में रह रहा था, इसलिए अपनी पत्नी का भी प्रॉपर्टी नहीं बताया। वो बताया मेरी सास का, ससुर का नहीं बताया। और सारा का सारा लोग लड़की के घर में रहता है। और इस पर विश्व केवल चिंतन कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, भारत के लोग चिंता कर रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है क्या कि विवाह के बाद लड़की के घर में आकर पति रहे। लेकिन ऐसा भी आदिवासी ग्रुप में ही ऐसा हो रहा है।
सभ्य जाति कहें या विकसित जाति कहें या मेन स्ट्रीम की बात करें, वहां पर ये बातें नहीं है। तो इन सब बातों को हम लोग चर्चा में ला सकते हैं। क्या होना चाहिए हमारे देश में, हमारे समाज में, उस पर हम लोग विचार कर सकते हैं। तो झारखंड में बहुत सारी बातें हैं जो पूरा विश्व के लिए वो हेरिटेज के रूप में उसको हम लोग दिखा सकते हैं। उसका अनुकरण करने से हमारे समाज में जो आज हम लोग कई तरह की दहेज की बात करते हैं या पूजा पद्धति में बाह्य आडंबर की बात करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, उससे हम लोग बच सकते हैं। लेकिन उसको पॉजिटिव वे में लेकर हम लोग चलेंगे तभी यह संभव हो सके। नेगेटिव नजरिए से देखेंगे तो उसका अनुकरण हम लोग नहीं कर सकेंगे। अब किसी भी स्तर पर आप देखिए, यहाँ के आप यहीं पर रहते हैं सारे, इसे जनजातीय बहुल क्षेत्र भी कहते हैं, लेकिन उसमें वास्तव में क्या होता है? क्या सभी की सभी बातें बुरी बातें हैं उस समुदाय में, या कुछ अच्छी बातें भी हैं? अगर अच्छी बातें हैं तो कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिसे अनुकरण करने की जरूरत है, और कौन कौन सी बुरी बातें हैं जिसे हमको छोड़ देना चाहिए? यहाँ के आदिवासी भी, अगर हम कहें कि ये संस्कृति हड़िया पीने की, शराब पीने की संस्कृति हमारे समाज में है, उसको अपना अधिकार बनता है, लेकिन बुरी बात है, उसे हम लोगों को छोड़ना चाहिए। इसी तरह से पूरे इस क्षेत्र में दैव और दिशाही की बात होती है, भूत की बात होती है। ये मंत्र पढ़कर ये भूत लगा देते हैं या लोगों को मरने के लिए विवश कर देते हैं। तो उस तरह का जो विश्वास है उसे अंधविश्वास करना चाहिए और उस तरह की प्रथा को हटाना चाहिए। ये सभी समुदाय के लोगों को, सभी समाज के लोगों को मिलकर ऐसा करने पर यह संभव हो सकेगा। हम क्लास में, एमए की क्लास में क्लास लेते हैं, तो अभी 2 साल पहले तक हम बोलते थे कि भैया समाज में ये डाइन और दिशाही की प्रथा है, तो लड़कियां खासकर ज्यादातर वो कहते थे कि हाँ है। तो हम कहते थे कि क्या उस समाज की ही कोई महिला होगी या फिर जुआती होगी? तो अभी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जुआ है, शादी के बाद गांव में आप लोगों को भी डाइन घोषित किया जाएगा, तो उसके लिए आप तैयार है? तो लोग कहते थे नहीं, हम लोग किसी हो सकते, हम लोग तो नहीं जानते हैं। तब बोले भाई आप ही लोग ना आगे जाकर शादी विवाह के बाद में महिला बनेंगे, बाल बच्चेदार बनेंगे, तो आप लोगों को डाइन घोषित किया जाएगा। तो धीरे धीरे उस बात को समझे। अभी इसी साल हम क्लास में पूछने लगे तो सभी ने कहा कि नहीं, ये अंधविश्वास की बात है, वास्तव में इस तरह की बात नहीं होती। तो इस तरह का भी हम लोगों को ऐसी बातों पर भी चर्चा करना चाहिए। और अगर यह अंधविश्वास है, कुव्यवस्था है, तो ऐसी व्यवस्था को हम लोगों को दूर करने का जरूरत है। यह समाज में अगर पूजा पद्धति को देखें, झारखंड का बहुत बड़ा त्योहार है सरहुल और तर्पण। अभी सरहुल मनाया गया। भादो एकादशी में कर्म होता है, चैत्र तृतीया में, शुक्ल पक्ष चैत्र तृतीया में सरहुल होता है। सरहुल में क्या है? आदिवासियों का देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा ईश्वर, सबसे बड़ा भगवान सूर्य है। सूरज सबसे बड़ा भगवान है। हम आप लोग को बतला रहे थे कि मुंडारी भाषा परिवार, आग्नेय भाषा परिवार में यहाँ के मुंडा, संथाल, हो, खड़िया, ये लोग आते हैं। उन लोग ईश्वर को सिंगबोंगा कहते हैं। उराव लोग इसको धर्मे कहते हैं। तो ये सिंगबोंगा भी सूर्य है, धर्मे भी सूर्य है। सूर्य की जब उष्मा या सूर्य की किरण धरती पर पड़ती है
तभी अंकुरण संभव हो पाता है या हम लोग जीवित रह पाते हैं। अगर सूर्य ना रहे तो क्या जीव जगत की कल्पना कर सकते हैं? मानव जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और उस सूर्य और धरती को, पृथ्वी को माता के रूप में माना गया है। और साल वृक्ष जिसे यहाँ के लोग सराय और उसके पुष्प को सराय फूल कहते हैं। साल से सरना और साल से सखुआ और उसके फूल से सरों में पूजा की जाती है। तो साल वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है? साल वृक्ष पर आपका जाड़ा, गर्मी, बरसात, आंधी, तूफान किसी का असर नहीं होता। साल का वृक्ष के बारे में कहता है लोग कि वह 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा। 100 साल में सड़ा बोलता है लेकिन सड़ता नहीं। और इसी तरह साल की वृक्ष से पूजा करके और उसी के फूल से सना की पूजा करके लोग साल वृक्ष से सदियों से लोग प्रेरणा ले रहे हैं। यहाँ के उसमें नंबर की बात नहीं है। तब प्रभात नगर में हरिवंश जी जो भी राज्यसभा में उप सभापति है, वो रांची में घर बना और प्रभात नगर का वर्षगांठ मनाया जा रहा था रेडिसन जून। तो वहां पर वो अपना व्याख्यान में बोल रहे थे कि रांची में मैं केवल इसलिए घर बनाया कि यहाँ पर एक आदमी पूरे समुदाय के लिए, पूरे गांव के लिए या सभी लोगों के लिए ईश्वर से मन्नत मांगता है, सुख समृद्धि की बात करता है। केवल इसी को लेकर मैं रांची में घर बनाया। अभी राज्यसभा में उपाध्यक्ष है और यहाँ पर वो आते हैं, आज तो वही बात वो कहते हैं कि केवल, और इसीलिए कहते हैं कि आदिवासियों से भी हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। बहुत कम में ये लोग अपना लाइफ को गुजार देते हैं, कैसे गुजार देते हैं, कैसे संभव होता है। तो हम लोगों को भी कुछ उन लोगों से सीखना चाहिए। ये सबसे निवेदन करते हैं हरिवंश जी। बहुत कुछ जानने की बात है। आप लोग देखते हैं कि टाना भगत लोग जो महात्मा गांधी के बहुत बड़े अनुयायी हैं, बिल्कुल सादा परिधान पहनते हैं, सादा ड्रेस होता है और कभी भी लोग खून नहीं लेते, सादा खाना, सादा पीना, वो बहुत बड़ा पंथ है। उनसे भी कुछ सीखना चाहिए। सीखने के लिए बहुत कुछ है, इस पर चर्चा बहुत विस्तार से होना चाहिए। बहुत अच्छे विषय पर आप लोग सेमिनार आयोजित किए हैं। ये आप लोगों के सोच को भी दिखाता है, आपके नजरिया को भी दिखाता है कि आप क्या करना चाहते हैं समाज में, समाज को कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। यह विषय आपके सोच को बतलाता है और यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ के मैनेजमेंट का यह बहुत अच्छा सोच है कि यहाँ पढ़ने वाले अपने छात्रों को, यहाँ के सारे शिक्षकों को और इसके माध्यम से पूरे राज्य में या देश को भी कुछ अपना सोच को आप दिखलाना चाहते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सभी को, खासकर यहाँ के मैनेजमेंट, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, सारे आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और इस पर बहुत लंबा चर्चा हम लोग कर सकते हैं। यहाँ के विषय, इस विषय को लेकर पूरे विश्व पटल पर इस विषय को रखकर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि पूरे विश्व में आदिवासियों की क्या स्थिति है, उनसे हमको क्या लेना चाहिए, उनसे हमको क्या सीखना चाहिए। और इसीलिए यूएनओ हो चाहे यूनेस्को हो, वो मातृभाषा की बात करती है, आदिवासी दिवस की बात करती है। इसलिए
कि हम अभी जो बोल रहे थे कि कुरुख भाषा में जो युवतियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, वो अगर किसी भी पुरुष से बात करते हैं तो पुल्लिंग होकर बात करते हैं, स्त्रीलिंग होकर बात नहीं करते हैं। तो अगर इस तरह की भाषा एक बार चली जाएगी, समाप्त हो जाएगी, तो ये सब बातें, ये जो विशेषताएं हैं, ये सब हमेशा के लिए चली जाएगी, कि फिर से वापस कभी नहीं आएगी। हम लोग अपने स्तर से सुनते हैं कि पूरी दुनिया में 16,000 17,000 भाषाएं थी, लेकिन आज 6,000 के आसपास भाषाएं बची हुई। लोग कहते हैं कि प्रति एक दिन या 2 दिन के बाद एक भाषा मर जाती है, लेकिन भाषा मरती नहीं है, भाषा मार दी जाती है। उसको बोलने वाले लोग नहीं करते, कोई बोलते नहीं है, प्रयोग में नहीं आता है, तो वह भाषा मर जाती है। तो भाषा नहीं लोग बोल रहे हैं, नहीं बोलने से मर जाती है, तो मरती नहीं, उसे कहा जाता है मार दी जाती है। और इसलिए अगर किसी संस्कृति की बात करते हैं, सभ्यता की बात करते हैं, तो उस भाषा को भी बचाने की आवश्यकता है। अभी चेयरमैन साहब से बात हो गई, ये जापान की भाषा, प्रिंसिपल मैडम से बात हो गई, जापान की भाषा, चीन की भाषा। अब 2013 में चीन घूम रहे थे, तो वहां इंग्लिश बोलने वाला कोई मिलता नहीं। जब आयोजन किया था तो चीन के बहुत गिने चुने बच्चे जो दूसरे देश में, अमेरिका, इंग्लैंड, घर चले गए थे, उन लोग इंग्लिश बोलते थे। उन लोगों को वहां पर बुलाया गया था, इसलिए कि केवल वही लोग इंग्लिश बोल पाते हैं। लेकिन उन लोगों ने क्या, और ये जो 80 के आसपास जो वैश्वीकरण का दौर चला, उसको भी लोग स्वीकार नहीं करते थे। 90 के आसपास में लोग वैश्वीकरण के दौर को स्वीकार करते, चीन के लोगों। लेकिन उन लोगों ने देखा कि भारत के युवा 10 लाख से भी ज्यादा भारत से बाहर विदेशों में रहते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं। काफी लोग उधर की नागरिकता ले लिए हैं, उधर पढ़ रहे हैं। तो चीन वालों ने सोचा कि भारत, अध्ययन किया उन लोगों ने कि चीन के इतने युवा, इतने बच्चे विदेशों में कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं। तो उन लोगों ने निष्कर्ष निकाला, डिस्कस करने के बाद, कि भारत के बच्चे इंग्लिश जानते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं, और केवल इंग्लिश बोलने के कारण 10 लाख से भी ज्यादा बच्चे भारत के विदेशों में रहते हैं। तब अभी वहां पर इंग्लिश को तरजीह दिया गया है। चीन, बहुत सारे देश में इंग्लिश को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती। दुनिया के 40 देश में इंग्लिश बोला जाता है। और आप लोगों को जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलने वाले भारत में लोग हैं। इंग्लैंड तो छोटा सा देश है, पुराना उत्तर प्रदेश था, उत्तराखंड नहीं बना था, तो उत्तर प्रदेश के बराबर इंग्लैंड है। तो अब भारत के साथ तुलना कैसे करेंगे। भारत का हर स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई होती है, तो बोलते भी लोग ज्यादा इंग्लिश है। और इसीलिए ये सर्वे किया गया है, और सर्वे से पता चला कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलने वाले भारत में लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं। वो अच्छी बात है। इन सब के बावजूद अभी आप लोगों ने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में, नई एजुकेशन पॉलिसी में ये मातृभाषा को बहुत ज्यादा तरजीह दी। अभी पिछले ही महीना एक भारतीय भाषा की राष्ट्रीय लेवल की बैठक हुई थी, और उसमें मुझे भी बुलाया गया था। अब 5 वक्ता हम लोग थे वहां पर भाषा पर, और मुझे भी एक वक्ता के रूप में वहां रखा गया था। तो ये मातृभाषा को कैसे प्रश्रय दिया जाए, स्कूलों में शिक्षा का माध्यम कैसे बनाया जाए, इस पर भारत सरकार चिंतन कर रही है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत इसको स्कूलों में इंट्रोड्यूस करेगी, प्राथमिक विद्यालय में इंट्रोड्यूस करेगी। उस पर पढ़ाई आरंभ करने के लिए
हम लोगों से प्राथमिक विद्यालय का जो प्राइमर है, किताबें हैं, उसको उन लोगों ने हमसे मांगा और हम लोग वहाँ पर अवेलेबल कराए। और पूरे देश से इस तरह का मांगा जा रहा है कि वहाँ की भाषा में कोई किताबें बनी हैं या नहीं बनी। और झारखंड की इन सभी भाषाओं में किताबें बनी, चाहे वो खोरठा हो, कुमारी हो, मुंडारी संथाली हो, सभी भाषाओं में किताबें बनी हैं प्राथमिक स्तर के लिए। और बहुत जगह नहीं बनी है, तो हमको ऐसा लगता है कि झारखंड में मातृभाषा में पढ़ाई पहले शुरू हुई, इसलिए कि और जगह प्राथमिक विद्यालय के लिए प्राइमर नहीं बनाए गए, यहाँ प्राइमर बनी हुई है। तो बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, लेकिन आप लोग यहाँ पर इस सेमिनार में केवल मुझे सुन रहे हैं, तो हमको लगता है कि बहुत लंबा नहीं बोलना चाहिए। और इतना ही बोलकर मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। और बाकी फिर कभी हम लोग मिलेंगे तो जो बच रही बातें उस पर फिर बात होगी और हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अंत में फिर मैं यहाँ के चेयरमैन साहब को, यहाँ के मैनेजमेंट को, सबको अपनी ओर से बहुत धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद इसलिए कहना चाहते हैं कि जिस बात को लेकर पूरी दुनिया चिंतित है, उसको आपने यहाँ पर आरंभ कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है, जिसको भारत सरकार सोच रही है, यूएनओ सोच रही है, यूनेस्को सोच रही है, उस काम को आप प्रारंभ कर चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप सभी को मुझे सुनने के लिए मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your valuable information about our tribal heritage. It was such a great insight. Now, I would like to call our dignified teachers to come on the stage and deliver their thoughts and opinions on preservation of tribal heritage. So, I request our respected sir, Mr. Vinod Kumar Gautam sir, to please come on the stage and share his views on preservation of tribal heritage. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आदरणीय इस शिक्षा महाविद्यालय के अध्यक्ष महोदय श्री मनरत्न महतो सर, निदेशक महोदय श्री मनोज कुमार महतो सर, प्राचार्य महोदया डॉक्टर संतोष अरोड़ा में, प्रबंधक महोदय श्री मुकेश कुमार महतो सर, प्रशासनिक पदाधिकारी महोदया सुश्री मीना में, विशिष्ट अतिथि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची से आए हुए डॉक्टर हरिराम सर, सातवीं व्याख्यातागण, सभी गैर शैक्षणिक पदाधिकारीगण एवं हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आप सबों को मेरा जोहार। बड़े ही या समाज से संबंध नहीं है, बल्कि मूल निवास से संबंध है। वर्तमान में आदिवासियों को हिंदू सनातन धर्म से अलग दिखाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जो बहुत ही गलत है। हमारी जनजातियां सदियों से लोकगीतों, लोक नृत्यों, जीवन के उन मूल्यों का रंगीन पेंटर बनाते हुए जो मनुष्य के
मासूमियत को महत्व देते हैं। भारत के बाकी हिस्सों में आम लोगों के जीवन शैली से बिल्कुल अलग जीवन जी रहे हैं। उनके सामाजिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक परंपराएं और आर्थिक जीवन स्पष्ट रूप से अपने हैं। आधुनिक दुनिया की चकाचौंध से वे सदियों से सबसे कम प्रभावित हुए हैं और संतुष्ट जीवन भी जी रहे हैं। लेकिन वर्तमान में परिवर्तन के आघात से भारत के जनजातीय जीवन की नींव हिल गई है, क्योंकि भारत में अधिकांश जनजातियां अभी भी गरीबी, खराब स्वास्थ्य, अज्ञानता और अशिक्षा की सबसे दयनीय स्थिति में रहती है। वे सभी लोगों और उच्च जाति के असामाजिक तत्वों द्वारा सदियों पुराने शोषण के शिकार रहे हैं। उनके श्रम और धन का उपयोग दूसरों के घोंसले को पंख देने के लिए किया गया है, जबकि वे गरीब हो गए हैं। उनका आर्थिक जीवन, सामाजिक मानदंड और सांस्कृतिक मूल्य प्रणाली अपनी विशेष विशेषताओं को खोने के खतरे में है। विरोधाभासी रूप से पर्याप्त भारी जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। धन्यवाद। जय भारत। बिल्कुल तालियां बजते रहनी चाहिए। Thank you, sir. Indeed, it was a great work of knowledge that you shared with us. Now, I request the respected ma'am, Mrs. Jyoti Bala, to please come on the stage and deliver her thought. संभाल रखी परंपराएं, आदिम व्यवस्था जिसने संभाल रखी परंपराएं, आदिम व्यवस्था जिसने धरोहर बचाई, पर्यावरण का सम्मान किया, जिसने धरोहर बचाई, पर्यावरण का सम्मान किया, वह भारत का वासी है, वह आदिवासी है। यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों और श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और जोहार। आज हम सभी यहाँ उन प्रयासों की चर्चा करने आए। मैं थोड़ा इसको और सरल करने की कोशिश करती हूँ। मूर्त विरासत, हम विरासत के उस हिस्से, उस भाग को कहेंगे जिसके अंदर स्मारक, जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, जिसके अंदर भवन के अवशेष आते हैं। अमूर्त विरासत का वह भाग है जिसको हम महसूस कर सकते हैं, जैसे लोक नृत्य, लोक कथाएं, लोकगीत, लोक संगीत, रीति रिवाज, परंपराएं, धार्मिक विश्वास, ये सारे अमूर्त विरासत के हिस्से हैं। और हमें जब विरासत को संरक्षित करना है तो हमें दोनों तरफ की विरासत को बचाना है। एनजीओ से जुड़े हुए लोग और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जब वो मिलकर आदिवासी विरासत को संरक्षित करने की कोशिश करेंगे, तब कहीं जाकर हम सही मायने में उसे संरक्षित कर पाएंगे। अंत में आप सभी ने बहुत संयम से मेरी बातें सुनी। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
संचालन कर रहे हमारे छात्र छात्राएं को तहे दिल से धन्यवाद कि आज प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल हेरिटेज के बारे में आज हमको इस सेमिनार संगोष्ठी में भाग लेने में पार्टिसिपेट होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं इतना भी और इस मल्टीपर्पस हॉल में मनरखन महतो बीएड कॉलेज मल्टीपर्पस हॉल में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं एवं हमारे चेयरमैन सर, ट्राइबल लैंग्वेज एसोसिएशन रांची यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरिराव सर, प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और हमारे मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, इतना कुछ होने के बाद कि जो विश्व अभी सोच रहा है, जो करने जा रहा है, आज हमारा झारखंड हो, हमारा कंट्री हो या फिर विश्व, उस लैंग्वेज के तरफ से आज हम लोग अपना संरक्षण, आदिवासी संरक्षण को आगे बढ़ावा देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका फर्स्ट पार्टिसिपेट यहाँ मनरखन महतो बीएड कॉलेज अगुवाई की है। इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हमारे कॉलेज के लिए हमारे डॉक्टर हरिराव साहब ने जो 6ठी अनुसूची में इन लोगों के साथ में रखा, 5वीं अनुसूची में रखने के बाद कहा गया है कि इतने सारे जो भी जनजाति, आदिवासी जनजाति है, इन लोगों का स्वशासन स्वयं होना चाहिए। इसका एक ग्राम सभा होनी चाहिए। ग्राम सभा में जो अंतिम निर्णय इन लोग जो पंचायत के थ्रू लोगों तक करते हैं वही चलना चाहिए। तो उसमें भी देखें कि बहुत सारी करप्शन घुस रही है। अब उसमें से क्या हो रहा है कि धरने से क्या होता है कि इसमें पॉलिटिक्स आ जा रही है, राजनीतिक पार्टियां इंटरफेयर कर रही है, कहीं कांग्रेस चली जा रही है तो कहीं बीजेपी, तो कहीं अलग अलग टाइप से। तो उससे क्या होता है कि जितने सारे समुदायों को खरीद बिक्री करके उनकी एक संरक्षण, रिजर्वेशन की पॉलिसी, सारी चीजों को लोगों को मोटिवेट किया जाता है। तो ऐसे जगहों में सर सबसे पहले मेरा आपसे आग्रह है, अभी तो बहुत सारी ऐसी टॉपिक हैं, बहुत सारे इसके अंदर जाने की चीजें हैं, बट हमारे भी स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेट किए हैं जो कि लोगों के पास में भी बहुत अच्छे टॉपिक हैं जो सर आपसे आग्रह है। और सर आप शुरू से ही कोऑपरेटफुल रहे हैं। हरिराव सर से मेरा ये है कि जब हम रीजनल डिपार्टमेंट में एडमिशन लेने के लिए गए थे तो खुद ही ये सर मेरे एडमिशन भी लिए और इनका अवेयरनेस करने का क्षमता स्टार्टिंग से ही रहा। मेरा नागपुरी भाषा में सर शायद जो भूल गए होंगे, काफ़ी दिन भी हो गई, 2009-11 का दिया है सर। तो ऐसे समय में अपने कॉलेजेस में जितने सारे स्टूडेंट आते भी थे उन लोगों को बहुत पोलाइटली सही ढंग से ये किए हैं। अब मैं पुनः एक बार बहुत सारे टॉपिक को रखना है, बट आगे का भी हमको बहुत सारे लोगों को देखना है, इसलिए सर धन्यवाद। लेकिन सर आप मेरे कॉलेज में आए, हमारे बच्चों, हमारे टीचर्स, हमारे मैनेजमेंट, हमारे चेयरमैन, डायरेक्टर सर का प्रोत्साहित किए, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। Thank you, sir. We got to know so many things about our tribal heritage because of you. So moving forward, I would like to call the participants on the stage for sharing their views on preservation of tribal heritage. So the first participant for the presentation is Ivy Guria, student of BA first year. I request you to please come on the stage. मैं आईवी गुड़िया बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा, मैं आप सभी के सामने हमारी आदिवासी विरासत के संरक्षण के विषय में चर्चा करने जा रही हूँ। आदिवासी भारत की जनजातियों के लिए सामूहिक शब्द जिन्हें भारत के स्वदेशी लोग माना जाता है। आदिवासी शब्द दो शब्दों आदि और वासी से मिलकर बना है और इसका मूल निवासी होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या लगभग 10.5 करोड़ है, जो कि देश की जनसंख्या की 8.6% है। जोहार, शुभ मध्याह्न। मैं रेणुका कुमारी, बीएड प्रथम वर्ष की छात्रा, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ आदिवासी विरासत का संरक्षण विषय लेकर। विश्व के अधिकांश देशों में
आदिवासी निवास करते हैं एवं इन्हें विभिन्न नामों जैसे आदि मानव, एबोरिजिनल्स, जिप्सी, गिरिजन, आदिवासी एवं कई अन्य नामों से पुकारा जाता है। हमारे भारतवर्ष के सबसे प्राचीन समुदाय यहाँ के आदिवासी हैं, जिसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के नाम से संबोधित किया जाता है। ये देश के विभिन्न दूरवर्ती क्षेत्रों यथा जंगलों, पहाड़ों और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वास करते हैं। ये प्रारंभ से ही दूरस्थ एवं निर्जन स्थानों पर वास करते आए हैं, इसलिए आदिवासियों की अपनी अलग एवं विशिष्ट पहचान बनी रही है। आज भी दूरस्थ स्थानों पर आदिवासियों को सैकड़ों वर्ष पूर्व की सभ्यता में जीवन यापन करते हुए देखा जा सकता है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल जनसंख्या का लगभग 26.2 भाग जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है। यहाँ के आदिवासियों तथा मूलवासियों के द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई अस्मिता को पहचान दिलाने के वर्षों के संकल्प एवं तीव्र आंदोलन के बाद भारत के 28वें राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। झारखंड संस्कृति की पहचान का आधार यहाँ की आदिवासी संस्कृति की विरासत ही है। झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति वास करती हैं। इनमें से 8 को आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। इन आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक धरोहर, भाषा एवं बोली, वेशभूषा, सभ्यता, संस्कृति, लोकाचार एवं रस्मों रिवाज है, जो इनके विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और विजातीय पहचान को परिलक्षित करता है। छोटा नागपुर में मुख्यतः 2 समुदाय के लोग रहते आए हैं, आदिवासी और गैर आदिवासी। आदिवासियों में संथाल, उरांव, मुंडा, हो, खेरवार, लोहरा, खड़िया, भूमिज, गोंड, महली, बेरिया, चेरो, करमाली, चीप बढ़ाई, किसान, बिंझिया, कंवर, कोल, बिरहोर, बैगा, मान पहाड़िया, बिरजिया, लुड़ाई, असुर, कोरबा, कोरा एवं परगिया हैं। प्रजातीय दृष्टि से इनमें से कुछ तो प्राक द्रविड़ जातियां हैं, कुछ द्रविड़, कुछ प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और कुछ अन्य। आदिवासी कहे जाने वाले लोगों का सदियों से वन से गहरा रिश्ता रहा है। वे शुरू से ही वन में रहते आए हैं। वन उनके जीवन का बुनियादी आधार रहा है। प्रकृति की हरी भरी गोद में ही उन्होंने अपनी जीवन घर, व्याकरण सीखा और गढ़ा। झारखंड के आदिवासियों की संस्कृति, भाषा, नाच गान, रीति रिवाज, आचार विचार, टोट में संबंध आदि जल, जंगल तथा जमीन से जुड़े हुए हैं। यदि उनके पास जल, जंगल, जमीन ही ना रहे तो उनकी संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक धरोहर नष्ट हो जाएगी। यदि उन्हें इन प्राकृतिक परिवेश से हटा दिया जाए तो उनकी रोटी का स्रोत हमेशा के लिए छूट जाएगा। उनके लिए जीवन, जंगल और जमीन एक ही गुण सच्चाई के 3 पक्ष हैं। इन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया जाए तो वे पेड़ से कटी डालियों की तरह खुद ब खुद सूख जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी विरासत हमारी राष्ट्रीय पहचान है। इस कारण से इसका संरक्षण करना अति महत्वपूर्ण है। ऐसी कई एजेंसियां हैं जो इसके संरक्षण का कार्य करते हैं, किंतु इस कार्य को करने के लिए सभी की सहभागिता भी जरूरी है। कुछ लोग तो इसके महत्व को ही नहीं समझते हैं और मानते हैं कि इसके संरक्षण से कोई लाभ नहीं है। यदि हम यह आवश्यक समझते हैं कि
tribe has a vested interest in making sure that resources are protected for future generations. Tribals are indigenous communities who have lived in their respective regions for generations, and their culture and traditions are unique, and there are various measures that can be taken to ensure their survival. Preserving the tribal communities is essential for various reasons, including cultural diversity. The tribal communities are an integral part of the world. Preserve tribal heritage can involve establishing cultural centers, engaging in collaborative research and documentation, and supporting this. By taking these actions, we can help to ensure the tribal heritage is preserved for the future generations. Thank you. Now, I request our respected